Hello children, today I Niyamat Khan have brought to you the topic multiplications of algebraic expressions. But before starting the video, I would like to request you to like and share my video. Also, till now if you have not subscribed my channel, do subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to get the notification in proper time. So first we'll discuss about multiplication of monomials. I have taken two monomials, one 6ab and other 4b. Now we will multiply these two. Now how to multiply? First we will multiply the numerals. We have 6 and 4. So 6 into 4. Then literals. A, we have only one A, and B, how many B? 1 and 1 power will add. So our answer becomes 6 4s are 24 AB square. This is our answer. In this way we will multiply the monomials. Let us take another example. This time I have taken 3 terms. 3 monomials I have taken. So the same manner, first we will multiply the numerals. So our numerals are 2 and 2. And then we will multiply the literals. So our literals are x. How many x? Here power 1. Here power 2. So we will add. And here power 1. And y. Power 1. Power 1. Power 2. So in exponential power we have learned that whenever there is multiplication, then if base remains the same, then we will add the power. And in case of division, if base remains the same, then we will subtract the powers. Now we will get the answer. 2 2s are 4, x to the power 4, y to the power 4. This is our answer. Very simple. Now multiplication of a monomial and a binomial. So we have 3x as a monomial and binomial twice x plus 5y. So let's multiply. In two ways we can do the multiplication, like addition and subtraction, column method and horizontal method. First let's do in a column method. So I have written binomial first and then monomial, and now I am going to multiply. So first I will multiply these two. 5 3s are 15 xy plus 2 3s are 6 x and x square. Okay, from right hand side also we can multiply, from left hand side also we can multiply. And in horizontal method, let's multiply the same in horizontal method. Now see, first we'll multiply these two. Okay, 3x and 2x. So 3 2s are 6, x and x square. 1 plus 1, 2, power is 1 and 1, 2. Then this plus will come here. Again now these 2. So 3 5s are 15 and xy. Literals will write like this. Okay, we got the same answer. Okay, whether in column method or horizontal method, answer will be same. किसी भी मेथड में हो आंसर सेम आएगा. नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बाइनोमियल्स. दिस टाइम वी हैव टेकन टू बाइनोमियल्स. हमने दो बाइनोमियल ले लिया है. अब इस दो बाइनोमियल को हमें मल्टीप्लाई करना है. तो किस तरह से करेंगे? एक बाइनोमियल को हम खोल देंगे. जिसे देखो यहाँ पे इसको हम खोल दे रहे हैं. कोई भी एक को खोल सकते, इसको भी खोल सकते, इसको भी खोल सकते. मैं इसको खोल रहा हूँ. क्यों खोल रहा हूँ इसको, और इसको क्यों नहीं खोल रहा हूँ? प्लस है, मेरे लिए इजी हो जाएगा, इसलिए मैं इसको खोल रहा हूँ. ठीक है, तो मैंने लिख दिया 3x, और ये पूरा का पूरा लिख देंगे क्योंकि ये 3x को ये पूरा के साथ मल्टीप्लाई होना है. तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 5x माइनस 7y. उसी तरह से बचा क्या हमारे पास? प्लस 5y बचा. प्लस 5y हमें लिख देना है यहाँ पे, और ये पूरा को लिख देना है. ठीक है, क्योंकि प्लस 5y के साथ 5x माइनस 7y मल्टीप्लाई होने जा रहा है. सो फर्स्ट विथ 3x विल मल्टीप्लाई this binomial, and then with plus 5y we will multiply this binomial. Okay, now we are ready to multiply. So 3 5s are 15. नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया. और अब लिटरल्स की बारी है. तो लिटरल्स हमारे पास x है और यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है. सो 1 plus 1 2 हो गया पावर. ठीक है, फिर माइनस आ गया यहाँ पे. 3 7s are 21.
लिटरल्स हमारे पास x और y है, सिंगल सिंगल है इसलिए ऐसे ही रहेगा। प्लस आ गया 5 5 जा 25, इस पार्ट का खत्म हो गया। अब इस पार्ट को देखेंगे। सो 5 5 जा 25। हमारे पास लिटरल्स है x और y, असेंडिंग ऑर्डर में हम लिख देंगे x और y। उसके बाद माइनस है हमारे पास 5 7 जा 35। लिटरल हमारे पास y है, कितना y है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, सो 1 + 1 पावर 2। अब ये हमारे पास आ गया, लेकिन इसमें बीच में क्या आया, लाइक टर्म्स आया। हमने पढ़ा था एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में लाइक टर्म्स आएगा तो उसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन में करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है 15x²। इसका कोई और टर्म्स नहीं है लाइक टर्म्स, ये इसी रहेगा, ये दोनों का लाइक टर्म्स है। सो प्लस माइनस माइनस 25 में से 21 गया तो 4 बचा, ठीक है। और 25 चूंकि ग्रेटर है तो यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस साइन बैठेगा, जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया था हमारे लास्ट सेशन में। और ये 35y² अकेला है तो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ लेट्स डिस्कस मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ट्राइनोमियल ले लिया और एक बाइनोमियल ले लिया, ठीक है। अब हम इसको रखेंगे और इसको खोलेंगे। क्यों, हम इसको भी खोल सकते थे, हम इसको क्यों खोल रहे। तो इसको खोलेंगे तो 3 बार हमें करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, और इसको खोलेंगे तो 2 बार में हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको खोलते हैं हम। हमारे पास है x² और इसको पूरा का पूरा हमें रखना है क्योंकि इसके साथ भी इसको मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे ये पूरा का पूरा रख देते हैं। 9x² - x + 15। अब हमारे पास इधर में क्या बचा, -3 बचा, ले लिया। -3 के साथ भी हमें पूरा को इंटू करना होगा। 9x² - x + 15, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, x² से ये पूरा को, फिर -3 से ये पूरा को। तो यहाँ पे न्यूमरल्स क्या है, सिर्फ 9 है, 9 1 जा 9। लिटरल्स x² है तो x² और x² क्या हो गया, x⁴, 2 + 2 4। फिर यहाँ पे माइनस है, लिटरल एक ही है, x है, 2 + 1 3। फिर प्लस है 15 है न्यूमरल, पहले न्यूमरल लिखेंगे फिर लिटरल लिखेंगे। लिटरल हमारे पास x² है। तो इस पार्ट का काम हमारा हो गया। अब हमारा बचा इस पार्ट का काम। अब इस पार्ट में हमारे पास क्या है, सबसे पहले माइनस है, 3 9 जा 27, x² अकेला सिंगल है, माइनस एंड माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस को भी तो माइनस के साथ इंटू करना होगा। तो हमने इंटीजर्स में पढ़ा था माइनस इंटू माइनस प्लस होते हैं। और 3 है, लिटरल लिखिए x है, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस, 15 3 जा 45, ये मिल गया हमें। अब यहाँ पे लाइक टर्म्स क्या क्या है, यहाँ पे लाइक टर्म्स बस ये 2 है, बाकी का चिंता नहीं है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 9x⁴ अपनी जगह में, x³ अपनी जगह में है, और ये दोनों का अब देखना है, इस दोनों को, दोनों लाइक टर्म्स है, प्लस माइनस माइनस। 27 में से 15 गया तो क्या बचा, 27 में से 15 गया तो क्या बचा, 12 बचा। अब ग्रेटर नंबर 27, उसके आगे माइनस है, मतलब माइनस बैठेगा यहाँ पे, और ये x² आ गया, ठीक है। फिर ये प्लस 3x - 45, ये रहा हमारा आंसर। क्योंकि ये और अब एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि एक भी लाइक टर्म्स नहीं है। जब सारे अनलाइक टर्म्स आ जाए तो हमें समझना पड़ेगा कि ये हमारा आंसर हो चुका है। नाउ लेट्स सॉल्व वन सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पे मैंने एक सिंप्लीफाई वाला सम्स ले लिया। यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लीकेशन भी है, माइनस भी है, और प्लस भी मिल जाएगा बाद में। तो तीनों का यूज यहाँ पे हो रहा है, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन, तीनों का यूज यहाँ पे होगा। किस तरह से सिंप्लीफाई करना है, देखो यहाँ पे एक प्रोडक्ट फॉर्म में यहाँ पे, एक प्रोडक्ट फॉर्म में यहाँ पे, और बीच में माइनस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर एक ब्रैकेट में ले लेंगे और इसका आंसर एक अलग ब्रैकेट में ले लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9x, हमें पता है एक के साथ दूसरा जुड़ेगा, 9x के साथ ये पूरा होगा तो ट्वाइस x -5 हो गया यहाँ पे। फिर -7 आएगा, -7 के साथ ये पूरा होगा, ट्वाइस x -5, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट हमने ऑलरेडी यूज किया तो सेकंड ब्रैकेट में ले दे दिया पार्ट पार्ट करने के लिए, और इसको भी एक ब्रैकेट में ले लेंगे। यहाँ पे ट्वाइस x के साथ ये पूरा 5x -3, फिर -8 के साथ ये पूरा 5x -3, ब्रैकेट क्लोज करना,
ना भूलिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अलग करना है, इसको अलग करना है, इस बात का ध्यान में रहे, बहुत सावधानी के साथ करना पड़ेगा, नहीं तो माइनस है, साइन अगर चेंज हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मेरे प्लस होते तो हम ब्रैकेट नहीं लगाते, क्योंकि प्लस में हमारा गड़बड़ होने का चांसेस नहीं है, लेकिन माइनस में गड़बड़ होने के चांसेस है। ठीक है, ध्यान रखना, माइनस होने से ब्रैकेट यूज करना ताकि सम्स गलत ना हो। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वही तरीका है। एक बार फिर मैं कॉलम मेथड की तरफ आपको रुक कर रहा हूं। ठीक है, 2x - 5 है और इसको हमको 9x से मल्टीप्लाई करना है, तो ट्वाइस 2 × 9 18। मैंने कहा था लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं, राइट साइड से भी कर सकते हैं, हम राइट साइड अलजेब्रा में सिर्फ, तो ये राइट साइड से मैं कर रहा हूं। 2 9 × 18, x और x पावर 2 हो जाएगा, माइनस है 5 9 × 45 और ये x। इस तरह से कॉलम मेथड में भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मेथड का यूज करना सही होगा, इसलिए हॉरिजॉन्टल मेथड हमने यूज किया है। तो हमारे पास वही आया 18x² - 45x। ठीक है, अब ये देखो 7 से करना है, माइनस है हमारे पास, 7 2 × 14, x है, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गए। ठीक है, और 7 × 5 35 हो गया। ठीक है, इसको फिर हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस आया, फिर यहाँ पे ब्रैकेट यूज करेंगे हम। अब इसको खोलना है हमें, 3 5 × 15, 3 से करना है हमको। x है, पावर दोनों का 1 1 है तो 2 हो गया, फिर माइनस आया यहाँ पे, 3 3 × 9 हुआ, x है, फिर ये माइनस आया, 8 5 × 40 हुआ, x है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गए, 8 3 × 24। अब ये मिला हमें। अब यहाँ पे देखो, ये लाइक टर्म से इधर भी, लाइक टर्म से इधर भी, पहले लाइक टर्म्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। 18x², क्योंकि हमें पता है कि ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है, माइनस माइनस प्लस, 45 and 14 59x + 35। ठीक है, और इधर में 15x² माइनस माइनस प्लस, 9 and 40 49x + 24। ये आ गया हमारा। अब ब्रैकेट को खोलना है हमें यहाँ पे। अब यहाँ पे सावधानी से, माइनस है 15x² माइनस इंटू माइनस प्लस 49x माइनस इंटू प्लस माइनस 24। अब देखो मल्टीप्लिकेशन का काम हो गया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन में भी हमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन मिल रहा है, तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम किस बेसिस पे करेंगे, पहले लाइक टर्म्स को हम एक साथ करेंगे। ठीक है, तो लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं। यहाँ पे 18x² है और क्या है 15x² है। ठीक है, तो इसको एक साथ मैंने कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है माइनस 59x और इसका साथी है प्लस 49x, फिर है प्लस 35 कांस्टेंट नंबर है, और इधर में कांस्टेंट नंबर हमें मिल रहा है, कांस्टेंट टर्म हमें मिल रहा है माइनस 24। अब इसको करते हैं, तो इसको पार्ट में हमें 3 पार्ट हो गया यहाँ पे। पहला पार्ट 18 में से 15 गया तो 3 बचा, 3x² माइनस प्लस माइनस 59 में से 49 गया तो 3 बचा, x से माइनस लगेगा, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 35 में से 24 गया तो 11 है, प्लस लगेगा। क्यों लगेगा, एडिशन और सब्सट्रैक्शन चैप्टर में मैंने समझाया था कि नंबर लाइन में जो नंबर दूरी पर है उसका पावर ज्यादा होगा, उसका साइन हम लेंगे। ठीक है, तो ये बना हमारा आंसर। सो चिल्ड्रन, होप यू हैव अंडरस्टूड मल्टीप्लिकेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो झट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फौरन नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। इसी के साथ आज ये सेशन यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।